Hello, good morning children. Myself Karunesh Bhadoria. Children, welcome to physics class. In previous video, I have explained acceleration, है ना? Acceleration and some numericals also. What do you mean by acceleration? Velocity, speed and acceleration. These three important topics as cleared. So, if we talk about acceleration, can you tell me what is acceleration? Yes, it is the rate of change of velocity. Rate of change of velocity is acceleration, and rate of change of displacement is velocity. Rate of change of distance is speed. ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं. Now today chapter number 3, motion in a straight line. Today I am taking a very important topic, equation of motion. Derive equation of motion by different methods. Like first of all I am taking calculus method. After that we can derive these equations by graphically method. Okay, so today differential equation of motion. There are four equations of motion. V is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and third is v square is equals to u square plus 2as, and fourth distance covered in last second, in tth second, Sn equals to u plus 1 by 2 a 2n minus 1. So these are four equation. We have to derive these four equation by calculus method, right? So equation derive, this is heading derive. Very important topic is this, equation of motion, equation of motion by calculus method. Calculus method. You have already studied calculus. In calculus, differential and integral, both I have explained. So today there are four equations. Number one, v equals to u plus a t. This is first equation. Second, s equals to ut plus half at square. This is the second equation. And third one, v square equals to u square plus 2as. Third equation. And fourth one, Sn or Snth equals to u plus 1 by 2a 2n minus 1. Today we have to derive these four equations. First equation, v is equals to u plus at. What is the significance of these variables u, v, a and t? Children, suppose a car is moving with initial velocity u. A car is moving with initial velocity u. After some time t, after 2 seconds, after 5 seconds, after 5 minutes, this is t. Its velocity becomes something that will be final velocity. अब velocity अगर increase कर रही है, it means car is accelerated. So some acceleration is given to car. A is acceleration. Here u is equals to initial velocity. This is initial velocity, right? V final velocity. A acceleration. Clear? And t is the time. S distance covered by the object,
this is distance, clear, and st in nth second cover distance, this is nth, snth, okay. So first of all, equation number 1, v is equals to u plus at, कैसे ये इक्वेशन डिराइव होगी, डेरिवेशन ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है आप लोगों को। तो फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा इसमें कैलकुलस मेथड में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों आते हैं, तो जिसकी ज़रूरत होगी, इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी, वो आप काम में लेंगे। मैंने एक पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही आपको सिखाई थी, राइट। तो चलिए यहाँ देखते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। फर्स्ट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ acceleration, we know that acceleration is the rate of change of velocity. From this definition we can derive first equation. So what is acceleration? Acceleration equals to rate of change of velocity, clear. We know that acceleration A equals to rate of change of velocity, A equals to dv by dt, dv by dt, dv change in velocity, dt change in time. So dv by dt rate of change of velocity, and this rate of change of velocity is called acceleration. So A is equals to dv by dt. What is A here? Acceleration. dv change in velocity. You can write here dv, small change in velocity, clear, change in velocity, and dt, this is change in time, or we can say time interval, right, time. So dv by dt is rate of change of velocity, that will be acceleration. On cross multiply we get dv equals to a dt, dv equals to a dt. Integrating both the side, क्योंकि हम यहाँ कैलकुलस मेथड, देखिए क्वेश्चन जब आएगा तो आपको लिखा होगा कि डेराइव दिस इक्वेशन बाय दिस मेथड, तो आपको यही फॉलो करना है। डेराइव दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड लगेगा, ग्राफिकल अलग है, ओके। तो जिस मेथड से पूछा जाता है आपको वो मेथड फॉलो करना होगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, राइट, दिस विल बी dv, इंटीग्रेशन में ये साइन होता है dv, एंड इंटीग्रेशन a dt। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे, हमें यहाँ लिमिट देनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी होती है, फाइनल क्या वेलोसिटी होती है, कितने टाइम बाद होती है। तो यहाँ पे एट t equals to 0, t equals to 0 means starting position, t equals to 0 means just starting position, and starting position, the velocity of object will be initial velocity. At t equals to 0, velocity is equals to u, this is initial velocity. कौन सी होगी ये? Initial velocity, clear, this is initial velocity, okay. t equals to 0 पर velocity is initial, this is u, and t equals to कुछ टाइम के बाद, t equals to t, कुछ टाइम पीरियड के बाद जो velocity will be final velocity, that is v. v is the final velocity, this is final velocity,
Clear? So this equation becomes integral dB equals to integral a dt. मैंने ये इक्वेशन लिखी है, इंटीग्रल डी बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए डी टी. इंटीग्रल डी बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए डी टी. कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, एज इट इज इक्वेशन यहाँ पे. अब कंडीशन अप्लाई करेंगे. टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to t, वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम u to v, इनिशियल टू फाइनल. सो दिस इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू t एंड दिस इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी. सो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की लिमिट होगी. वेलोसिटी की लिमिट कहाँ से चेंज हो रही है? u to v. लोअर लिमिट इज इनिशियल स्टार्टिंग, अपर लिमिट इज फाइनल, u to v. This is the limit from LHS side. In RHS, integration is in with respect to t. So limit will be this 0 to t, 0 to t. स्टार्टिंग दोनों का नीचे रहना चाहिए, फाइनल दोनों का ऊपर होना चाहिए. लिमिट फ्रॉम दिस टू दिस होता है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट. क्लियर? दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dB? इंटीग्रेशन ऑफ dB, कोई बताएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dB इज v. दिस इज v. हमने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू x. So integration dB equals to v. This is v. Limit नीचे lower limit, upper limit, u and v. This is limit. In RHS, integration is with respect to t. So a, we take a as a constant. So ये बाहर आ जाएगा a. Now ये हो जाएगा 0 to t integration dt. 0 to t dt क्या हो जाएगा? t. दिस इज ऑल्सो t एंड लिमिट विल बी 0 एंड t. अब लिमिट लेने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. फर्स्ट अपर लिमिट, देन माइनस, देन लोअर लिमिट, है ना. सो यहाँ पे अपर लिमिट ध्यान से देखना. लिमिट कैसे लेते हैं? जो इंटीग्रेशन आया है अपर लिमिट उसके प्लेस पर रखेंगे, माइनस, फिर उसी के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे. दिस इज़ द प्रोसेस. सो v, इसकी जगह v लिखेंगे, v की जगह v, दिस इज़ v माइनस. अब इसकी जगह u लिखना है तो हम उसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सिमिलरली इन RHS, t की जगह t माइनस, फिर t की जगह 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इंटीग्रेशन का ये तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. So v माइनस u इज इक्वल्स टू a t. ट्रांसफ़र करें, v इक्वल्स टू u प्लस a t. दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल इक्वेशन. v इज इक्वल्स टू u प्लस a t. व्हाट इज v हियर? v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी. a is acceleration and t is the time. So first equation derive हो चुकी है, v is equals to u plus at. एक बार इसको देखिए. और मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है? डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन. ये आपने पहले से पढ़ लिया है. डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन. ये आपको ऑलरेडी पता है. वही डेफिनेशन मैंने यहाँ से उठा ली. a is equals to dB by dt. a is equals to dB by dt. क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका, देन dB इक्वल्स टू a dt हो गया. ये dt इंटू a, dt इंटू a, दिस इज a dt एंड dB इंटू 1, दिस इज dB. सो dB इक्वल्स टू a dt. नाउ मेथड आपका कैलकुलस मेथड है. सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बोथ द साइड, आप चाहो तो इसे नंबर 1 दे सकते हैं. इंटीग्रेटिंग 1 बोथ द साइड, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ साइन लगा दिया इंटीग्रेशन का, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन दे दिया. इसके बाद जब इंटीग्रेट करते हैं तो मुझे लिमिट देखनी पड़ती है. अब लिमिट के लिए हम इसको क्वेश्चन को सोचिए. आप क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, किस तरह से इसमें यूज़ करना है. तो हम देखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन
to a final position. At the starting position, its velocity is called initial velocity. At the final position, the velocity of object is called final velocity. Or at initial position, time is 0. At final position, time is t. आप t1 t2 भी ले सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है. तो मैंने कंडीशन दी यहाँ पर t equals to 0 मीन्स इनिशियल पोजिशन. एट द इनिशियल पोजिशन velocity is initial velocity, so this is u. And after t second means at the final position, at t equals to t second, velocity will be final velocity, so it will be v यहाँ पे final velocity है. क्लियर? सो लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से t दिस साइड एंड u to v दिस साइड. क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट होगी. ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो लिमिट विल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. एंड लोअर लिमिट हमेशा स्टार्टिंग की होती है 0 to t. ये लोअर में, ये अपर में, सो 0 to t. यहाँ लोअर दिस, अपर ये, इनिशियल एंड फाइनल, लोअर अपर. वो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की. देखो लिमिट dv, लिमिट a dt. इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे आप इसे 1 इसको ना देके, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है ना, dv a dt, लिमिट ये लगा दी. एंड इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिस v होता है क्योंकि हमने आपको ये सिखाया था इंटीग्रेशन dx इज x, 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x. सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, इंटीग्रेशन ऑफ a इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t. एंड लिमिट इनिशियल और फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल. यहाँ लोअर लिमिट, अपर लिमिट, राइट. अब लिमिट लेने का तरीका मैंने बताया. फर्स्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट, देन माइनस साइन. आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट. सो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले अपर लिमिट दिस माइनस देन लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ पे भी वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कांस्टेंट है. सॉल्व किया इसको तो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ठीक है, इसे एक बार नोट कीजिए. इसके बाद सेकेंड इक्वेशन मैं लेता हूँ, नोट करें. हैव यू नोटेड? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. 1 2 3 4. चलिए नाउ second equation of motion, v is equals to u plus at. Equation number 2. Equation number 2, s equals to ut plus half a t square. This is the second equation. s is equals to ut plus half of at square. क्वेश्चन आएगा derive this equation by calculus method. आपको सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करनी है. फर्स्ट आती है तो उसमें लिखा होगा इक्वेशन दिस, इसका नाम लिखा होगा इक्वेशन फर्स्ट, v is equals to u plus at. तो आप उसे ड्राइव करेंगे. सेकेंड आएगा तो सेकेंड को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मैथड. अब इस इक्वेशन के लिए वी नो दैट the definition of velocity, definition of velocity क्या होती है? rate of change of displacement, है ना. v equals to d s by dt. this is the definition of velocity. पीछे वाले में क्या लिया था? डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन. यहाँ पर डेफिनेशन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी मोटी चीज़ें प्रैक्टिस में तो लानी पड़ेगी कि हम किस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, है ना. सो फॉर सेकेंड इक्वेशन ये कंसेप्ट आपको लेना पड़ेगा वेलोसिटी का. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो डी एस इक्वल्स टू, क्रॉस कीजिए, ds into 1 ds, v into dt, this will be v dt. v यहाँ पे क्या है?
फाइनल वेलोसिटी, तो v की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 1 में आ चुकी है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो डी एस इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी एंड डी टी, राइट। यहाँ हमने v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसका यूज़ मिल गया इसको, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो पुट द वैल्यू ऑफ v हियर, दिस इक्वेशन विल बी डी एस इक्वल्स टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें। नाउ अप्लाइंग द कंडीशन, और वी कैन से अप्लाई द लिमिट। सो इनिशियली इन आर एच एस ऑन इंटीग्रेटिंग कर दो, इंटीग्रेटिंग इन एल एच एस एंड आर एच एस। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी डी टी। नाउ टेकिंग द लिमिट इनिशियली एट t equals to 0, t equals to 0. In LHS, integration is in respect of distance. What is S here? S is a distance. In RHS, integration is in respect of time. In LHS, this integration is with respect in distance. So limit जो होगी ना, टाइम और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लेनी पड़ेगी। इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पर डिस्टेंस कितनी होती है, एंड फाइनल टाइम जो है ना, फाइनल टाइम जो ना उस पर डिस्टेंस कितनी होती है, ये आपको देखना है। तो मैंने लिखा एट t इक्वल्स टू 0, इनिशियली टाइम पर डिस्टेंस स्टार्टिंग में क्या कोई डिस्टेंस कवर्ड होगी ऑब्जेक्ट के द्वारा? नहीं होगी, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग की बात है, ऑब्जेक्ट प्लेस पर ही होगा। सो डिस्टेंस s इक्वल्स टू distance equals to 0, right? Now at t equals to t, कुछ टाइम के बाद कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू सपोज इट इज s। t सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस कवर कर लेता है, स्टार्टिंग में यहाँ था, t सेकेंड के बाद वो यहाँ आ जाता है। तो दिस इज द डिस्टेंस s, दिस इज एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज एट टाइम t इक्वल्स टू t। So in this time interval, object covered distance final minus initial, this will be s distance. So यहाँ condition हो गई t equals to 0 पर distance 0 and t equals to t पर distance is s. Apply this condition. Look here. मैं ये ले रहा हूँ ये लाइन, इंटीग्रल ds equals to इंटीग्रल u प्लस ए टी एंड डी टी। लिमिट डिस्टेंस की लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, 0 to s with respect to t, limit is 0 to t, 0 and t, this is the limit। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन LHS इंटीग्रेशन इज in respect of distance, so we have to take limit in distance form. In RHS integration is in respect of time, so in RHS limit will be in the form of time, initial and final. Clear? Now integration of ds, simple formula, integration dx मैंने आपको बताया था, this is x, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। so integration of ds it will be s, और लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। क्लियर? इन RHS इसमें दो टर्म है, u एंड ए टी, अलग अलग कर दीजिए पहले आप इसको। दिस इज इंटीग्रेशन u डी टी 0 to t लिमिट प्लस इंटीग्रल a t डी टी लिमिट 0 से डिस्ट्रीब्यूट कर दी लिमिट। इंटीग्रेशन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, अलग अलग। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। यहाँ लिमिट ले लो, s अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट, s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए यहाँ t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, सो u विल बी एज ए कांस्टेंट, u बाहर आ जाएगा एंड
इंटीग्रल ऑफ डी टी, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स होता है तो इंटीग्रल ऑफ डी टी टी होगा. दिस इज टी एंड लिमिट 0 लोअर अपर टी. क्लियर? एंड दिस इज अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ टी, सो ए विल बी एज ए कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा ए. और अब बचता क्या है इसके अंदर? इंटीग्रेशन टी डी टी. यहाँ देखिए इंटीग्रेशन टी एक्स करो एक्स डी एक्स. कोई बता सकता है? इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स मैंने फॉर्मूला दिया था, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, मैंने ये फॉर्मूला दिया था. इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. ये इंटीग्रेशन होता है. एन की जगह यहाँ 1 है, एन की जगह 1 कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रल एक्स पावर 1 डी एक्स, इधर 1 प्लस 1 2/2. इंटीग्रल एक्स डी एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2. इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2. इंटीग्रल ऑफ टी डी टी टी स्क्वायर बाई 2. इंटीग्रल ऑफ यू डी यू यू स्क्वायर बाई 2. इंटीग्रल ऑफ पी डी पी पी स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ पे इंटीग्रल टी डी टी दिस विल बी टी स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 2. क्लियर? सो एस इक्वल्स टू यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर माइनस लोअर ए स्क्वायर नॉट ए स्क्वायर ए अपर लिमिट टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0/2 0. सो एस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कीजिए यू टी प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इज एस. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. एस इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन वी हैव ड्राइव्ड फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. इन दिस इक्वेशन जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया था वो एक्सेलरेशन का लिया था. एंड इन सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वेलोसिटी का. वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी एस इक्वल्स टू वी डी टी. वी की वैल्यू इक्वेशन 1 में गिवन है वो पुट कर दी, और इसके बाद लिमिट जो भी इसमें लिमिट आ रही इनिशियल टू फाइनल के हिसाब से, इस साइड में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लिमिट, और इस साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में. तो ये टाइम की लिमिट, ये डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस का ये उसकी लिमिट है. दोनों तरफ लिमिट लगा दी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये फॉर्मूले से मैंने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट लगा दी. तो फाइनल जो सॉल्यूशन है, फाइनल जो इक्वेशन है वो हमें मिल गई एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. क्लियर? इसे एक बार नोट कीजिए. इसके बाद थर्ड इक्वेशन मुझे लेनी है, नोट करें आप इसको. यस, हैव यू नोटेड? तो दो इक्वेशन यहाँ हो गई हैं. फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड s is equals to ut plus half of at square. In this video I have taken two equations. In next video, next two equations, v square equals to u square plus 2as, and s nth, what is s nth? Distance covered by object in nth second, last second. जैसे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, मान लो 10 सेकंड तक उसने मूव किया. अब 10th सेकंड में एक तो होता है 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, और एक लास्ट सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस. तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन लास्ट सेकंड. सो इसको भी हम ड्राइव करेंगे ये दो इक्वेशन. तो इस वीडियो में इतना. ओके, थैंक यू.